Hello everyone, I welcome you to today's class. Today's class is class where we'll be covering general science, and even in general science we'll be covering the portion pertaining to physics. As we know, general science is an important subject that finds mention in almost all competitive exams. So to make sure we are thorough with this subject, especially physics, we'll be doing the NCRTs and the relevant portions from them. तो आपकी जो क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ प्लस लूसेंट प्लस जितने आपके क्वेश्चंस वगैरह जो रहे हैं दूसरे स्टेट्स एग्जाम्स में पूछे हुए उनको आज हम कवर करेंगे. द वीडियो विल गो लाइक दिस. First, I will be explaining you things. The things which I have written in this slide or in this class have been taken from NCRTs, especially class ninth and class 10th. So, and after doing these things, we'll be seeing some questions which I have taken from different state exams and CDS, CAPF previous year questions. So here we start. So we start with the first chapter, which is matter and property in states. So in this class, I'll be only detailing those things which are relevant for you in the scheme of examination, which you can use to solve your questions and find the right answers. So as we know, there are three type of matter, which is solid, liquid, and gas. While a fourth type of matter is said, which is called plasma. But the NCRT mentions only these three types. These three types, which is solid, liquid, and gas, are differentiated on the basis of spacing between the molecules or the spacing between the atoms of these particular substances. Greater the space, that is, अगर मान लीजिए if if the molecules, the atoms are very closely packed, this is solid. If there is distance, this it is liquid. And if the distance is very much or they are very spacious, that is gas. So now this placement is very important, since this space helps in diffusion. And now what is diffusion is intermixing of particles of two different types of matter. So example, when we say salt plus water, so this will be a example of diffusion. Or say mixing of two gases, this can also be a diffusion. So why do diffusion happen? The reason for it is plain and simple: because of the gap between these two particles, these try to come in between, and thus forming a particular mixture. So there are some questions, and these questions are also from NCRTs, and I have written these as कई बार आपके जो आते हैं सवाल एग्जाम्स में, वो ये पूछते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दे दी और पूछते व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. सो इन क्वेश्चंस को हम केटर करने के लिए वी हैव written these question and answers. So the question being, why does the smell of hot sizzling food reach you several minutes before द कोल्ड फूड, है ना, कि आप कोल्ड फूड की कभी आवाज़ नहीं है, मगर जैसे हम सिस्टर ऑर्डर करते हैं कभी रेस्टोरों में, उसकी आवाज़ आती है. क्यों? बिकॉज इट इज़ हॉट, देर इज काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व. द काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू द साउंड लीड्स टू द साउंड. ठीक है. दिस हॉट पार्टिकल मूव फास्टर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, diffused into the air more quickly, and thus we can listen it, while cold particles have no kinetic energy, thus no voice. So another is, how can a diver, when he dives into the pool, goes directly into it? This is because liquid has some sort of gaps in it. So these gaps are utilized while the diver dives. And so what now the another pertinent question is, what are the characteristics of the particles of material? Particles of material might have spaces between them. They keep on moving continuously. So there are two type of energy, while there are many type of energy, but in physics we generally refer two type of energy. One being kinetic energy, and other is potential energy. Potential energy. We'll be discussing it.
Kinetic energy is basically energy by virtue of motion. आप सोचिए कुछ भी जो चीज हिलती है which is moving has some sort of motion energy. Example, say if a moving car hits you, what will happen? You know the answer to it. Potential energy is the energy which is due to some sort of position. अब मान लीजिए pencil when it is here, it has some sort of energy because it is up from the ground, and if I drop it, so some sort of energy will be transferred towards the ground. So this is potential energy by virtue of position. Now similarly, particles have space. These space are utilized and are seen fundamental and important while diffusion process. Secondly, particles are constantly moving. Constantly moving, this means they have kinetic energy. Now, third, particles intermix because of the space. And lastly, particles are bound together by force of attraction. So अब इसके बाद state of matter, solid, liquid and gas. So these are relatively easier. So what needs to be remembered is solid have least compressibility while gases have the highest compressibility, and liquid have no shape, and they take the shape of the container in which they are put in, and gas are highly compressible, no shape, no volume. So these things are to be remembered. Solid has definite shape, definite volume and definite boundaries, while liquids have only definite volume but no definite shape. Gases neither have definite volume, definite shape or definite shape, shape or volume. अब इसके example gases is LPG, CNG. Now how why the gases are compressible is because of too much space between the molecules. So this leads to easy compressibility. अब हमने मैटर देख लिया, क्या मैटर है, तीन टाइपों की स्टेट्स भी देख ली. नाउ इज इट पॉसिबल फॉर द मैटर्स टू चेंज देयर स्टेट? स्टेट का क्या कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा हो सकता है या नहीं? सो द आंसर इज यस. अब ये कैसे? अब मान लीजिए ये आपका बीकर है, हीट इज अप्लाइड, हीट इज अप्लाइड, सो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी गेन करते रहते हैं, जब क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद particle keeps vibrating, and this vibration will lead to these particles breaking the force of attraction which is binding them. जब भी force of attraction will overpower, oh sorry, this kinetic energy will overpower the force of attraction, this will lead to change of state. For example, अगर मान लीजिए बर्फ डाली है मैंने, kinetic energy आएगी, फटाफट वो जो force of attraction which is binding the ice particles will wither away. Kinetic energy will lead to melting of ice. So this will lead to change of state. So this is change of state of the matter. At certain temperature, matter undergoes a change from solid to liquid, liquid to gas or something. Now within this, one process is called melting or fusion. This is change of state from solid to liquid. ठीक है, solid to liquid. So on heating a solid, particle vibrates with greater speed. Heat energy overcomes the force of attraction, and particle breaks because they are free to move, and solid turns into liquid. Now at this temperature where this thing happens, मान लीजिए आप बर्फ रखी हुई है आपने, -5 डिग्री पे है, अब वो -3 डिग्री पे होगी. Will it lead to some sort of change of matter? No. A particular point, a particular temperature needs to be achieved, and this particular temperature where the change of state can happen is called melting point. So melting point is the minimum temperature, and mind you, minimum. कई बार the examiner plays with minimum and maximum. So melting point, we need to remember it is minimum. So minimum temperature at which solid melts into liquid at atmospheric pressure. अब latent heat of fusion क्या रहेगी? We'll expand on the melting point itself. It is amount of the heat energy required. अब मान लीजिए जैसे हमने कहा ना, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज ऑफ स्टेट होगी,
मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हीट भी प्रोवाइड करते रहेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट आएगी, मान लीजिए 100 यूनिट कुछ, ठीक है। जब वो 100 यूनिट प्रोवाइड की जाएगी उस बर्फ को, जब भी वो चेंज होगी, एंड दिस यूनिट at which 1 gram, that is 1 kg of solid, turns into liquid is called latent heat of fusion. This is one when 1 kg happens, 1 kg जब हो पाएगा चेंज, ठीक है। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी जरूरत क्यों इस चीज की? सो दैट वी कैन हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि 1 किलो पानी, सॉरी 1 किलो बर्फ को चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए, 1 किलो मान लीजिए और कोई चीज है जिसको लिक्विड करने के लिए कितना, तब्दील करने के लिए कितना चाहिए, सो दैट कंपैरेटिव वैल्यूज कैन बी टेकन। जब आपने क्योंकि मास फिक्स कर दिया, वेट फिक्स कर दिया 1 kg, so अब कौन factor what will change is temperature or the melting point. So to arrive at this melting point, we use the concept called latent heat of fusion. Since weight same रहेगा, amount of heat will differ, and this amount of differing heat will be captured by our latent heat of fusion. Similarly, boiling. Boiling क्या रहेगा? आप सोचो इसको। बॉइलिंग हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, क्या होगा बॉइलिंग? व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इसमें आराम से ये पढ़ सकते हैं, विल बी नोइंग दीज थिंग्स। जैसे उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, अब माइंड यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैस कन्वर्जन्स। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। सो मोर और लेस मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड आना है, व्हाट डू वी नीड? फ्यूजन, जो हमने देखा ना ऊपर, फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस बननी है, वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस सीधा बन जाए अगर, तो सब्लिमेशन कहते हैं इसे। एग्जाम्पल कैम्फर, नीचे पढ़ेंगे अभी इसको। और अगर गैस से वापस लिक्विड में जाना है तो कंप्रेशन, ठीक है। जैसे एलपीजी इज व्हाट? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सो दिस इज अदर थिंग। बॉइलिंग हमने देख लिया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है एंड विच कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन, दैट इज डज द टेम्परेचर चेंज व्हेन दिस स्टेट चेंज इन स्टेट इज हैपनिंग? मान लीजिए जब बर्फ से आपकी पानी बन रहा है, तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है उस चीज का? सो आंसर विल बी नो। एंड व्हाई नो? बिकॉज हीट एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज अब्सॉर्ब्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो नेट नेट जीरो रहते हैं। तो जब पे पढ़ेंगे हम, मान लीजिए कि सो हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, दीज आर वेरी केमिकली डेंस थिंग्स, बट हमें क्या है कि सिंपल हमारे लेमन में समझ सके इसलिए हम वो कर रहे हैं। मान लीजिए 100 यूनिट आपकी रिलीज होती है जब बर्फ से पानी में तब्दील होती है, बट ये 100 यूनिट ऐसे कैसे आर यूटिलाइज्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? So what will lead is neither plus neither minus. So it will balance out. So there will be no change in temperature. There will be only change in state of matter. Now sublimation we have seen, change from state solid to gas. Usually क्या रहता है, जैसे ice, ice turns into liquid, water, that is water, water turns into steam. ये रहता है कि solid से liquid, liquid से gas. अगर solid से सीधा गैस बन जाए, this process is called sublimation. और ये कुछ एक सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है। से इफ अ कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? आपके पंडित जी जब हवन करते हैं तो देखते हैं ना आप, क्या कहते हैं उसे, कैम्फर को हिंदी में क्या कहते हैं? समझ गए होगे यार आप, कैम्फर जो ऐसे, जो अम, ऐसे चकोर सी होती है एक, कैम्फर, ठीक है। लेट्स सी कैम्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, लेट्स सी कैम्फर इन हिंदी। कपूर, कपूर, ठीक है, कपूर जैसे आपकी होगी। नेपथलीन बॉल्स और ड्राई आइस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू गैस ट्रांजिशन और सब्लिमेशन। अब इंपॉर्टेंट इज केल्विन, केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। पहली बात विच वी नीड टू रिमेंबर इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो पहले तो हमें याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। हाउ टू कन्वर्ट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी जितने बॉयल होते हैं,
is 373 Kelvin. तो इस हिसाब से we can calculate. अब नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हमने अब तक टेम्परेचर से देख रहे थे, टेम्परेचर जब चेंज होता है हाउ थिंग्स हैपन. नाउ प्रेशर, प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्रेशर का क्या हिसाब है? इफ वी अप्लाई प्रेशर इट विल कंप्रेस अ गैस, एंड व्हेन दिस कंप्रेशन इन गैस इज हैपन इट टर्न्स इनटू लिक्विड. ठीक है. और सिमिलरली जब लिक्विड से हम ज़्यादा प्रेशर हटा देते हैं इट विल टर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ गैस. इवेपोरेशन हमें पता ही फ्रॉम लिक्विड टू गैस. अब there are some things which we need to remember about evaporation are surface area. अगर ज़्यादा surface area है it will lead to more evaporation. Temperature, if higher the temperature more the evaporation. Humidity, humidity is the amount of water vapor present in the air. अगर ज़्यादा present है पानी हवा में so evaporation will be less. अगर कम है if air is rather dry it will lead to more evaporation. If humidity is high, air cannot hold more vapor, evaporation slows down. If humidity is low, evaporation is faster. Now wind speed, higher the wind speed, higher the evaporation. Since मान लीजिए यहाँ से evaporate हुआ, इस हवा में अब saturated होगी, ज़्यादा humidity है. If there is air, it will take away that particular parcel of humid air and lead to more humidity. Now evaporation causes cooling. ठीक है. अब ये कैसे होगा? मान इवेपोरेशन, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इट कैन बी सीन बाय व्हेन इट अब्सॉर्ब्स लिक्विड. अब जैसे अब हम खेल के आते हैं जब गीला होता है गात, है ना, शरीर हमारा गीला होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ठंडी हवा लगती है, इतना कूल कूल लगता है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग. एवरीडे लाइफ एग्जांपल, दिस इज important. Acetone and nail polish remover works by the works on the principle of this evaporation. और आप देखो, दिस इज समरी ऑफ द चैप्टर. जो हमने पढ़ा है इसकी समरी ही है, तो कोई ज़्यादा आपको मुश्किल होगी नहीं. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. these things often come in the exam via some form of match the following. So we'll learn them categorically और याद रखेंगे क्या क्या है चीज़ें. अब अगला, is matter around us pure? The next chapter which is important from the NCERT and which we need to learn is matter around us pure. अब ये क्या है? It tells about us mixtures क्या है, colloidals क्या है, इनके बारे में चैप्टर बात करते हैं. So पहले तो हम मिक्सचर देखें क्या होते हैं. मिक्सचर is when two substances mix together, it forms a mixture. Now this mixture can be homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and there are many other types of mixture too. So पहले हम देखेंगे क्या क्या ये हैं. Homogeneous mixture is mixture where यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. एज इन मान लीजिए आप नींबू पानी पीते हैं, ऊपर वाली सिप में भी देर इज इक्वल अमाउंट ऑफ चीनी, और नीचे जब जाते हैं उसमें भी देर इज इक्वल अमाउंट ऑफ स्वीटनेस. सो दिस इज एन होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज व्हेन देर आर वेरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. एग्जांपल सॉइल, सैंड इन वाटर. आपने मिट्टी घोलने की कोशिश की पानी में, तो ऊपर वाली सतह पे क्या पता कम मिट्टी हो, नीचे की मिट्टी भारी है वो बैठ जाएगी. सो दिस इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. सो अगर जैसे हम देखते हैं एक बार नीचे, मैटर एज इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस क्या है? एक जैसे पेंसिल भी एक तरह से लगा लो, प्लास्टिक भी नहीं, एक से सोडियम इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट है वो. इट कैनॉट बी कट डाउन इनटू smaller substances. Compound have a fixed composition and can be broken down into smaller substances. Example NaCl or H2O, water. While these are very uniform, but they can be broken down into simpler substances. H2O is like hydrogen and oxygen. Similarly, mixture is homogeneous as well as heterogeneous. Homogeneous have uniform composition, heterogeneous have non-uniform, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा. अब इसमें हम जब चलते हैं solution. Now solution is what? When a mixture is composed of solute and solvent. When these two combined, it leads to a solution. So solution is nothing but a homogeneous mixture of two or more substances. Yes, example जैसे. And important thing to notice, तब तक जो हमें लगता था important thing to notice,
इट कैन बी, आई मीन सोल्यूशन कैन बी, इट के आगे लिख देते हैं ना, सोल्यूशन कैन बी solid plus solid, solid plus liquid, liquid plus liquid, ठीक है ऐसे, और मे बी इवन गैस प्लस गैस। तो ये कुछ भी ऐसे मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल दूं, सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा बताओ? क्या होगा? अलॉयज, कोई भी अलॉय हो गया, ठीक है, जैसे ब्रास हो गया आपको। सॉलिड प्लस लिक्विड से लेमनेड, लिक्विड लिक्विड प्लस लिक्विड, समझ गए ना? जो आपके अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर या सोडा, जो भी आपको पसंद हो या मूड पे हो आपके, ठीक है, एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड। गैस प्लस गैस कैन बी, जो आपकी एयर है, सो एयर comprises of, say nitrogen is the main thing, है ना, and say CO2, O2, or even say your CNG, compressed natural gas, is composed of many gases, CNG, this can be also example. Now a solution consists of two things, solute and solvent. Solvent is the component which is larger in and dissolves the substance. पानी और चीनी में क्या solvent होगा? It is will be water, which it is larger amount. Solute is the component that is dissolved. अब देखो, एक तो क्या था ना कि हम पहले याद रखते थे यूजुअली कि वही सॉलिड लिक्विड डाइकोटमी, जरूरी नहीं कि सॉलिड और लिक्विड में सब कुछ सॉल्यूशन हो, देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स टू, एंड दीज आर एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जांपल जैसे शुगर प्लस वाटर, एयर, सोडा वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन, सो दीज आर सम एग्जांपल्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हमने ऊपर देखा था, सॉल्यूशन ओनली इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कभी भी नहीं होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ओनली होमोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल साइजेस आर लेस देन 1 न्यूटन मीटर, कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आप क्या आप देख पाओगे उसको? एक नींबू पानी में अलग से चीनी कहाँ घुली हुई है? वी कांट सी इट, सो दिस shows these cannot be seen by naked eyes and the size is less than 1 newton meter. They do not scatter light, ठीक है, do not scatter light। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे आपको दिखाता हूँ, दिस इज टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ इस हवा में सुबह सुबह अपना क्या रहता है, जैसे आप कभी खेलने जाते थे बचपन में शुरू में, तो सर्दियों में 8 7 8 बजे गए, थोड़ी सी अभी भी फोग है। फोग क्या है? फोग इज अ टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइड, ठीक है। अब उसमें क्या है, एयर हैज सम फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। तो आपकी जो भी सनलाइट आई शुरू में, इट विल बी स्कैटर्ड, जैसे मान लीजिए जैसे स्कैटर्ड देखा ना हमने, बहुत बार देखा, सो दिस इज अ टिंडल इफेक्ट। ऐसे सॉल्यूशन नेवर एग्जिबिट एनी सॉर्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड्स डू। तो ये कोलॉइड देखेंगे होते क्या, solution never does it, and stable solute does not settle। आप कितनी देर उसको नींबू पानी को रख दो ऐसे ही, वो नीचे नहीं बैठेगा, चीनी अलग से बैठी, so they are very stable in this matter, and they cannot be separated by mere filtration, you need some separate things to filter them। concentration of solution, dilute, concentrated, saturated, unsaturated, ये तो बाय वर्ड से हमें समझ आता है dilute क्या है, concentrated क्या है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज, मान लीजिए एक, जैसे हमने बात की थी ना ऊपर मैटर में, अब ये पानी के पार्टिकल्स है मान लीजिए, अब इसमें कितना नमक आ पाएगा? मान लीजिए इतना पानी, जितना ये स्पेस है। अब जब ये स्पेस पूरा भर जाए, तो दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? जब दिस स्पेस इज स्टिल लेफ्ट। अब इसका हम अगर एग्जांपल देखें, ह्यूमिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हवा में there is maximum amount of water present, so we'll call that particular air as saturated air,
अब जैसे आपने देखा ना, उमस बड़ी हो रखी है यार, बारिश हुई, बारिश के बाद धूप आ गई। अब उस धूप से क्या होता है कि आपका जो सारा मॉइस्चर है दैट कम्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, सो वी फील इट इज वेरी स्टकी, कि ऐसा कि बहुत उमस हो रखी है। अब मान लीजिए थोड़ा सी और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो उस टाइम क्या होगा, दोबारा से बारिश हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर चलता रहे, इफ द पार्सल ऑफ एयर, वो जो उमस अभी भी, इफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज स्टिल enough to hold more moisture, it will lead to more humidity. So saturated and unsaturated का मतलब भी बस यही है कि अगर particles के बीच में जगह भी रहती है, so this is unsaturated, and saturated is the point where there is no gap left between these particles, thus leading to a thing where the solution becomes saturated. Solubility is the amount of solute present in the saturated solution at a given temperature. Suspension, अब एक तो आपका solution है, मिक्सचर, अगला है सस्पेंशन। नाउ दिस इज एन हेट्रोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन वाज एन होमोजेनस, इट इज हेट्रोजेनस। इसका एग्जांपल आपको मैं दूं, आपको समझ आ जाएगा। दूध, मिल्क। नाउ मिल्क हैज कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वाटर मैक्सिमम, दूसरी कंपाउंड्स भी हैं, बट वी कैन नॉट सी दोस कंपाउंड्स बाय नेकेड आइज। बट अगर उसमें दूध में से आप ऐसे लाइट मारोगे तो इट विल स्कैटर, सो इट विल शो सम टिंडल इफेक्ट टू। सो ये हम एग्जांपल इससे देख सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, मडी वाटर, दीज आर सम। सॉरी यार, इसका ना सस्पेंशन का एग्जांपल नहीं है, वो कोलोइड का मिलेगा दूध, मिल्क, यस कोलोइड का है, आई एम सॉरी, बेग योर पार्डन। सस्पेंशन के एग्जांपल आपके चॉक पाउडर इन मडी वाटर है। Similarly, colloid is heterogeneous mixture where small and uniformly spread but not dissolved. इसमें these can be, suspension can be separated by filtration of some sorts, but not colloids. तो ये this table is very important, पेपर में पूछे जाते हैं कि एरोसोल में डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। तो डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स, कि what is dissolved, and in what is it is dissolved is dispersed medium, dispersion medium और dispersed phase। तो ये हम पढ़ेंगे और इनको याद करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल नीड्स टू बी रिमेंबर्ड बाय हार्ट। अब ये physical and chemical changes, there are two type of changes, one is physical, one is chemical. Physical changes is physical change is the change in the physical attributes of that particular object. इसके एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, दिस वैक्स कीप्स ऑन मेल्टिंग, दिस इज फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होगा, से व्हेन वी मिक्स, ठीक है, से व्हेन वी मिक्स a new substance itself is made, when we mix two particular components and a new component is made, say when we mix sodium and chloride, it will lead to chemical change and lead to a new element called NaCl, that is sodium chloride. So this is chemical change. अब ये समझाया हमने, फिजिकल चेंजेस आर रादर रिवर्सिबल, ठीक है, वापस आ सकते हैं सेट से सेट। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, एक बार बन गया तो यू नीड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ chemical, high level of chemical thing to revert them back, but usually we label it कि they are not transformable, they are not reversible. New compound are formed, उसमें nothing new, but there is some change of physical change. अब एक important ये है, I'll highlight it. So example of both changes, burning a candle. Candle जब burn होती है, it shows both physical and chemical change. Many times this question has been asked, where it is, the question reads as is, yeah sorry, what is burning of candle an example of? A physical change, B chemical change, A both, D none of the above. So answer will be C. जैसे physical melting of wax है, chemical burning of wax leading to CO2 and water vapor, this is कि रिवर्स नहीं हो सकता, दिस इज वो। अब ये क्वेश्चंस हैं, कई बार ये पूछते हैं, सो आई हैव रिटन दीज थिंग्स डाउन, सो वी नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स टू। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हमने नीचे भी देखा था, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, ये हम देख चुके हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। Facts about element, there are 100, around 100 elements, known elements, which are 92 known and rest are synthetic. Gases 11, liquid 2, compounds हम पढ़ लेंगे।
or this is some difference between mixture and compounds. Now this is what we have learned. So ये आप एक बार फटाफट फटाफट देख लेना क्या है इसमें, and you will be good to go. Next is motion. Now motion is an important chapter in your preparation. अब motion हमने कहाँ कहाँ पढ़े? There are some important concepts which we should know about when it comes to motion. देखो पहले तो there are two type of quantity. फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटी है जरूर. वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर. नाउ स्केलर आर दोज which have magnitude. Vector are which have, अब बताऊंगा क्या है वैसे, which have magnitude plus direction. इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल डिस्टेंस. अब देखो वैसे तो हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, बट इन फिजिक्स या इन वेरी साइंटिफिक टर्म्स देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. आपको इतनी जरूरत भी नहीं, बट थोड़ा सा बस याद रखना मैग्नीट्यूड क्या होता है. जैसे मान लीजिए डिस्टेंस 7 किलोमीटर, 7 is magnitude. If we say 7 kilometer east, so it has magnitude plus direction. So this is displacement. ठीक है. अभी displacement जो है, distance हम, this is scalar quantity which we have seen. Now distance is total amount of magnitude. मान लीजिए हमें first we went to O to A to C. अब O to A distance है आपका 60. This is 60 किलोमीटर. A to C वापस यहाँ है. This is 60 minus 25 is equal to 35 km. So total distance will be 95 किलोमीटर. अगर इसी का डिस्प्लेसमेंट देखना हमने, अब मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ गए फिर वापस से आए, असली में आप गए तो इतने ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो 25 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. The displacement can be zero while distance can never be zero. Say if I start from here, if we are running in circles, जो 400 मीटर डिस्टेंस है, 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, इफ वी कम एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट we will be displacing zero, displacement will be zero, distance can never be zero. So this needs to be remembered. Now there are two type of motions, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion, when you cover a certain set of distance in a certain set of time, 5 मिनट में 10 किलोमीटर या 5 सेकंड में 15 मीटर, तो 15 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो जाएगी. नॉन यूनिफॉर्म, पहले 10 मिनट में इतना तेज दौड़ा, उसके बाद में इतना तेज दौड़ा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. सॉरी, ये स्पीड वेलोसिटी. अब ऐसे स्पीड स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर. तो स्पीड ओवर डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम. एस इज डिस्टेंस, वी स्पीड. एवरेज स्पीड इज, आप कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं. वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव सीन इट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. ठीक है. अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एज स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म. नाउ देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट, से इफ वी आर हैविंग अ, ठीक है, फ्री फॉल हुआ, सो दिस वेलोसिटी विच कम्स, मैंने ऐसे कोई फेंका नहीं, आराम से मैंने छोड़ा इसको, यहाँ से छूटा है, आई हैव नॉट थ्रोन डाउन. So the speed by which it comes is called acceleration due to gravity, and this is constant in throughout the world. या throughout, कहीं भी आप जाओ सेम रहेगा. So when an object falls freely towards the earth, it experiences an acceleration due to the earth's gravitational force. This acceleration is called acceleration due to gravity, denoted by g. G is independent of mass. अब here an important thing to notice, आपकी जो acceleration due to gravity रहेगी वो बराबर रहेगी. अब मान लीजिए यहाँ तो एयर है, अभी
एयर है ना, से इफ इट वर वैक्यूम एंड इफ आई वर टू ड्रॉप दीज टू थिंग्स, मैं एक में हाथ में फेदर है मेरे, एक हाथ में ये है ये चीज, व्हाट इज दिस पेंसिल. So if I were to drop feather and pencil at the same time, irrespective of mass, same time आएंगे वो, if it were vacuum. But since it is air, so due to the higher weight, this will come faster than the feather. क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं पुट कर पाएगी ये ना, एयर जो रेजिस्टेंस होगा उसको तोड़ती आ जाएगी. दैट वाइदर दैट while that particular feather will keep floating. जैसे यहाँ मैंने लिखा भी एक जी, दिस इज योर MCQs, उनके नोट्स बनाए हुए मैंने, उसमें से दिस इज माय, दीज आर हैंड रिटन, सो देयर माइट बी सम लेजिबिलिटी इश्यूज बट दीज आर वेरी गुड नोट्स टू रीड फ्रॉम. जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ देखते हैं एक बार. हाँ देखो ये रहा. इफ ऑब्जेक्ट फॉल्स इन वैक्यूम, that is a negligible air, both at the same time irrespective of their mass, but if presence of air, heavier will reach the surface first. That is if object fall in vacuum and both will hit at the same time. ठीक है. बट अगर एयर में हो, प्रेजेंस ऑफ एयर, हेवियर विल हिट फर्स्ट. तो ये कॉमन सेंस भी है, मगर अगर वैक्यूम में पूछा हो आंसर आपका, वैक्यूम में क्या होगा, सो आंसर विल बी both will fall at the same time. But if it is asked in normal air, so the heavier substance will come first. Key point, this higher at poles, gravity is higher at poles and lower at equator because अर्थ की शेप क्या है, जियोइड, ऐसे थोड़ा फ्लैट है ऊपर से, तो यहाँ सेंटर से ये पास ज्यादा है, तो दिस व्हाट विल लीड टू, सिंस द डिस्टेंस इज स्मॉल, अट्रैक्शन विल बी मोर. जैसे मान लीजिए दो चुंबक हैं यार, एक इतने डिस्टेंस पे है और एक इतने पे है, ठीक है, एक कितने पे है, एक कितने पे, इसकी ज्यादा फोर्स होगी ना क्योंकि ज्यादा पास है. सो सिमिलरली पोल्स, बिकॉज दे आर vis-a-vis equator, they are closer, so they'll have more gravitational force. The gravitational force decreases with altitude, very easy thing to, and decreases with the depth of earth. Example, ये आप पढ़ लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं. Then next is Newton's law of motion. So there are three laws of motion as we know. हमें कई बार याद क्या रखना है, एक तो जो इनके कंटेंट है वो तो याद रखना ही है, बट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर व्हाट इज कॉल्ड व्हाट. जैसे अब लॉ ऑफ इनर्शिया अगर आते हैं, सो वी नीड टू बी श्योर एंड वी नीड टू रिमेंबर इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर मोमेंटम के बारे में पूछे जाते हैं, इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So Newton first law of motion is called law of inertia. A body continues to be in a state of rest or a state of motion unless or until an external force is applied to it. So this is first law. Example ये है, जैसे मान लीजिए हम अभी चल रहे हैं अपने क्या उसमें, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मोशन में है, चल रहे हैं, साथ 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 है. अब एकदम ब्रेक लगा, क्या होगा, बस रुक जाएगी, मगर हम तो आगे जाएंगे ना, तो एकदम, ठीक है. दिस इज inertia. Inertia of motion. A passenger jerks forward when moving bus suddenly stops because बस तो रुक गई, आप मोशन में थे. समझ आई. जैसे इफ आई गिव यू साइड व्यू, मान लीजिए ऐसे थे, अब बस जा रही है, अब बस रुक गई पीछे और मैं मोशन में था अभी, मैं मुझे थोड़ा ना स्टॉप लगा कोई, तो आई विल मूव फॉरवर्ड while the bus is stopped at behind itself. So this is inertia. So example आपको देख लीजिए, अदर्स पार्ट, ठीक है. ये अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब ये क्या है कि जितना मास होगा उतना मोमेंटम होगा. जैसे मान लीजिए कि, द मोर हार्ड यू किक अ फुटबॉल, द हार्डर या द मोर फोर्स इट विल जनरेट. तो मोमेंटम क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज मोर, मोमेंटम विल बी मोर. ठीक है. सो दिस इज, जैसे अब स्पिनर आराम से डालते हैं, when he bowls, force exerted is less, so the momentum is less. While if he exerts more, he'll extract more speed, more momentum. So this is second law of motion. Third is every motion has equal and opposite reaction. Every action there is equal and opposite reaction. Mostly used in this principle used in this aviation industry and especially rockets. कि जितना अब ऊपर जाने के लिए नीचे इतना फोर्स करता है उतने ऊपर जाता है वो.
सो स्विम या जैसे आप स्विमिंग करते हैं, वी पुश अमाउंट ऑफ वाटर, इतने हम पानी आगे तक खेलते हैं, ठीक है। सो गन गन रिकॉइल और से स्विमिंग या वाइल वॉकिंग। अब ये समरी है, थोड़ा सा हम इसी के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा है, तो ग्रेविटेशन ही थोड़ा उसका ही एक्सटेंशन है। अब एक चीज जो हमने वहाँ थोड़ी मिस करती थी शायद, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज वेरी कांस्टेंट, कि आप सेम रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से चीज छोड़ी, मैंने मान लिया फ्री फॉल किया, तो एक सेकेंड, अब मान ली एक सेकेंड हुआ ना ये, एक सेकेंड में द स्पीड वॉज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है, सो दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द अर्थ। अब ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, gravitation is a force. How it was discovered, as we often say jokingly, when Newton saw that apple falling, he saw something new, and this new was nothing but gravitation. Apple falls towards the earth, moon revolves around the earth, planet revolves around the sun. These are example of gravitational force. Now what happened was, अब मान लीजिए along with this gravitational force, there is another force which is important, that is called centripetal force. Centripetal force is a force due to which there is that particular object goes towards inside. मान लीजिए आपने रस्सी एक रस्सी बांधी स्टोन के, एंड यू आर नो सर्कलिंग इट। अब ये जो घुमाओगे, आपको दिस फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड ताकि सर्कल में रहे, द फोर्स विल बी सेंट्रिपेटल, अंदर की तरफ लगेगा वो। सो एग्जांपल जैसे, a stone is tied to a string and whirled in circle, while string is held, stone moves into circle due to centripetal force. अब जिस टाइम आप वो छोड़ दोगे रस्सी, जैसे मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, ऐसे ही घूम रहे, जिस टाइम आप छोड़ दोगे, ये टेंजेंशियली ऐसे जाएगा ये, ठीक है। when string is released, stone moves along a tangent straight line, मतलब सीधा ही है, ऐसे जाएगा ये बस। और इसमें कुछ खास है नहीं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए भी क्यों, तो वैसे जरूरत यार आपको नहीं है, चलो आप बस आप यू नीड टू मेक श्योर एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, सेंट्रीपिटल इज इनवर्ड, ये अंदर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एग्जांपल दूं मैं आपको, आप खुद सोचो। एग्जांपल इज वॉशिंग मशीन, उसमें बाहर लगता है वॉशिंग मशीन में, ठीक है, जो वो जब फूल घूमता है वो, या आपका जब मक्खन निकलता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। इफ आई शो यू एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल तो मान लीजिए ये हो गया, आपको डिस्कस थ्रोअर करता है, सेंट्रीफ्यूगल हाँ, जैसे चौक के थ्रू आउट जब हम करते हैं, जैसे गाड़ी घुमाते हैं, जिससे ऐसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फोर्स मशीन, देखो वॉशिंग मशीन ड्यूरिंग इट्स स्पिन साइकिल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स in action. A machine spins rapidly, the clothes are forced outwards towards the wall of rotating drums, ठीक है। तो ये this is example of centrifugal force. अब universal law of gravitation, so every object in the universe gets attracted towards the heavier object या दूसरे sorry, gravitational force in is the force where two objects are attracted towards each other. अब what happens is usually the bigger entity exerts more force, so उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सन और अर्थ में, heavier is sun, so earth is gravitated towards the sun, but when it comes to moon and the sun, earth, the moon is gravitated towards the earth, so this is gravitation. Gravitational constant is this ये आपका gravitational constant है।
अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67। अब की फीचर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दिस मीन्स अगर मास इंक्रीज होगा, इफ मास इंक्रीज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, अर्थ और सन में, क्योंकि मान अर्थ और मून है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लेसर देन अर्थ एंड सन्स बिकॉज द मास इज इंक्रीज। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल कम होगा। एग्रीड। हमने देखा भी था ऊपर इक्वेटर वाला एग्जांपल, डिस्टेंस इंक्रीज, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज, एंड इट एक्ट्स along the joining lines of center of both objects। ये आप याद कर लीजिए, टेक्निकल है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दे आर ग्रेविटी से, दे हैव फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमंग देम, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल एक्ट अलोंग द सेंटर्स, यहाँ एक ये है, एंड फोर्स इज म्यूचुअल, बोथ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मगर अब ये आपके दिमाग में आ सकती चीज कि यार अगर ये फोर्थ लॉ है, जैसे मान लीजिए अगर उस अर्थ की तरफ आपके एप्पल अट्रैक्ट हो रही है, तो एप्पल की तरफ अर्थ क्यों नहीं हो सकती? सो द आंसर विल बी बोथ आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, बट डिस्टेंस यहाँ हमें क्यों दिखती कि एप्पल्स मास इज वेरी स्मॉल, तो लार्ज एक्सेलरेशन फॉल्स इजिली। बट अगर अर्थ इतना बड़ा मास है, अट्रैक्शन होती भी है तो इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि थोड़ा मोटा अगर बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट अट्रैक्ट हो भी, वो दिखेगा नहीं हमें। समझ आई? Earth's mass is extremely large, negligible acceleration, motion not visible। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमने देख चुके हैं अब तक। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर करने से पहले विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल कैच यू इन 2 मिनट्स। वेलकम यू बैक टू द क्लास। पिछले पार्ट तक हमने देख लिया था व्हाट इज ग्रेविटेशन। now we'll be moving towards thrust and pressure। तो thrust का बेसिक मतलब क्या है? thrust, when we see it, thrust is nothing but a force that is perpendicularly applied on the surface of an object। एग्जाम्पल, जैसे आप खड़े हो फिलहाल, that will be an example of thrust। now when this thrust is acting per or at a particular space per unit area, so this will be pressure। so pressure is force, that is Newton per meter square, that is per unit area। तो ऐसा unit is Pascal of, that is of pressure, it is Newton per meter square is Pascal। so there are some key ideas। smaller the force, ठीक है, larger will be the pressure। so smaller the area, larger will be the pressure। example, जैसे मान लीजिए आपकी जो पेच है या आपके नेल्स है ना, नेल्स जो हम कील है ना, इनका ऊपर ऐसे होते हैं। अभी क्यों है? जहाँ से अंदर जाता है वो बड़ा पतला होता है। दिस इज बिकॉज स्मॉलर द एरिया, हायर विल बी द प्रेशर, स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर। और ऐसे ही इफ द एरिया इज लार्जर, ठीक है, मान लीजिए कि वुडन ऐसा हो कुछ बड़ा, तो उसका क्या है, प्रेशर कम रहेगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए आपकी जो बेंचेस के नीचे होते हैं ना, हम थोड़ा चौड़ा सा बना दें ताकि इट डजंट एक्सर्ट टू मच प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड इट रिमेन्स स्टेबल। तो स्मॉल फोर्स on large area will lead to smaller pressure, same force on smaller area leads to larger pressure। examples, जैसे camels can walk easily on sand because their feet have large surface area। तो large surface area उनके अगर पैरों का होगा, it will lead to less pressure। so these are some other things। जैसे tank and buses have very wide tires so that the pressure is reduced।
प्रेशर इन फ्लूइड्स, अब ये तो सॉलिड की बात थी, इन फ्लूइड्स में भी क्या रहता है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन एवरी डायरेक्शन इन एन इक्वल मैनर एंड द प्रेशर एक्ट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन बट इट इंक्रीजेज विद द डेप्थ। सो अगर ये आपकी प्रेशर है, ये लिक्विड है, सो ऊपर प्रेशर कम होगा, प्रेशर भी नहीं बल्कि हाँ प्रेशर ही, ऊपर प्रेशर विल बी लेस, नीचे प्रेशर मोर होगा। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है। अब मान लीजिए यहाँ ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज दिस विल बी ऑल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द बीनीथ, नीचे वाले पानी पे ये भी करेगा ज़्यादा, ठीक है, तो प्रेशर विल बी मोर एट द डेप्थ। एंड नाउ पास्कल लॉ, प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये आपकी पानी भरा हुआ, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ मैं पिस्टन लगाता हूँ या पिचकारी लगाओ यार, पिचकारी जैसे पीछे से मैं लगाऊंगा उसको, तो वाटर विल बी, सेम फोर्स विल बी exerted थ्रू आउट द वाटर एवरीवेयर। सो दिस इज पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो मान लीजिए पिस्टन है, अगर यहाँ नीचे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इट विल बी हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है, दिस इज पास्कल लॉ। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज पास्कल लॉ, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस। बायोन्सी, अब बायोन्सी इज नथिंग बट, ये पानी है, अब इसके पे कई बार देखा ना आपने, ऐसे पानी पे जैसे आप वो डाल दो, मग है ना, प्लास्टिक का मग, क्या होगा, ऐसे तैरता रहेगा, दैट इज बायोन्सी। सो बायोन्सी इज नथिंग बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लूइड। जैसे आप अभी जाना, आप पानी का डब्बा ऐसे करने की कोशिश करना प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, बाल्टी के, अब वो क्या होगा, ऊपर एक फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंसी, ठीक है। दिस बायंसी फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस, अगर ये आप हम पढ़ चुके हैं, आप देख लेना। अब इससे एग्जांपल स्विमिंग पूल और बकेट इन वेल, शिप फ्लोट्स, हीलियम बलून, दिस इज इंपॉर्टेंट सिंस दिस हेल्प्स इन आइदर फ्लोटिंग, sinking or remaining at the ground of that particular thing। अगर मान लीजिए weight, if the weight of a particular thing is more than the buoyant force it will lead to sinking, if weight is less than buoyant force object floats, if weight is equal to buoyant force the object remains suspended in the fluid। So these are important। अब Archimedes principle is based on this principle of buoyancy। So it says when object is partially or fully immersed in a fluid it experiences buoyant forces equal to the weight of the fluid displaced by it। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए पानी आपका, ठीक है, अब मैंने यहाँ 10 किलो का 10 kg का वेट डाला, अब लोहे का, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अब कुछ एक पानी बाहर जाएगा, यहाँ जाएगा ना, तो जो पानी बाहर जाएगा दिस इज इक्वल टू द वेट एक्सर्टेड। तो 10 kg का जाएगा तो 10 kg के हिसाब का वेट बाहर पानी निकलेगा, फोर्स निकलेगा। सो दिस इज नथिंग बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ बायोंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है वो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल रहता है। सो बायोंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दो बार लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोन्सी इज डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन। ना हाउ अ शिप इज डिजाइंड, इट विल कि कैसे उसे डिजाइन किया जाए ताकि कितना कम पानी आपका बाहर निकल रहा है, अगर ज़्यादा निकलता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल द होल शिप आर डिजाइंड। लाइफ जैकेट्स, हाइड्रोमीटर्स एंड हॉट एयर बलून्स। अब ये सॉरी रेपिटेशन हो गया था, नथिंग टू वरी, आई विल डिलीट इट। आर्किमिडीज यहाँ तक दोबारा से देख लेना। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है ये चीज़, एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट इज से, नहीं नहीं यार ये नहीं, यहाँ application of Archimedes principle, ship and submarine, ship floats because their hollow design makes average density lesser than the density of water, ठीक है। अब कई बार हम क्वेश्चन आता है कि why does iron nail sinks while iron ships float, this is because of the Archimedes principle at work। the ships are so designed that they are hollow, नीचे जैसे hollow रखेंगे उन्हें, अब यहाँ hollow होगा क्या होगा,
amount of water displaced is less. So this leads to what? This leads to less density, average density than that of water, and this leads to their floating. Hydrometers, which are used to measure the density of liquids. ठीक है, सो वो जो ऊपर एक जैसे बैटरी में अपने लेड एसिड वगैरह देखने के लिए दीज आर यूज, तो उस हिसाब से आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड कि जितना नीचे वो गया उतना पानी उठा, तो उस हिसाब से पता चल जाता है. लैक्टोमीटर इज सिमिलरली फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क, हॉट एयर बलून्स. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे इज वर्क एंड एनर्जी. अब देखिए, वर्क हमें क्या लगता है, अब आपने एक वीडियो ये लगाई होगी, दिस इज ऑल्सो वर्क फॉर यू, है ना, काम किया आपने. बट इन साइंटिफिक टर्म दिस इज नो वर्क. Work in scientific term is is one which meets these three conditions. A force must be applied on the object must be displaced, and the displacement must have a component in the direction of applied force. अब इन तीनों का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अब जैसे एग्जांपल देखो, अगर ये दीवार को मैं कितना ही पुश करूं, दीवार हिलेगी नहीं. सो द वर्क डन विल बी जीरो. Say if I am pushing, say this, I am pushing this I am pushing this, so this is some work done कि आई एम, और ये कुछ की मूवमेंट हुई है. अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ और वापस वहीं आ गया, तो देयर इज नो वर्क डन. ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न. सो वर्क डन, पुशिंग अ पेबल एंड इट मूव्स, पुलिंग अ ट्रॉली एंड इट डिस्प्लेसेस, लिफ्टिंग अ बुक अपवर्ड. Work is not done, holding a heavy suitcase without moving, force applied but no displacement, pushing a wall that does not move, force applied but no displacement, carrying a load horizontally, force सो कैरिंग अ लोड हॉरिजेंटली, दिस इज इम्पोर्टेंट. जैसे आप, ये इसका क्या है, आप सूटकेस ऊपर लेके जाओ बस, सीढ़ियों से, नो फोर्स, नो वर्क इज डन. बोलो काट, एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन. एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्ड एनर्जी इज यूज्ड कैजुअली बट इन साइंस इट हैज प्रिसाइज मीनिंग, दैट इज कैपेसिटी टू डू अ थिंग. एनर्जी हमने देख लिया है कई, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. So SI unit is joule. 1 joule is work done when 1 Newton force moves an object by 1 meter. So this is important. When 1 Newton force displaces object by 1 meter. So this is काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया क्या है, ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको. पोटेंशियल एनर्जी भी हमने देख ली है. तो मोर और लेस आपका यही है. अच्छा, साउंड, साउंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है हमें. देखो, साउंड आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसके बीच में आपका प्ले होता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, साउंड आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. अब क्यों, क्योंकि यूज उसमें आता है आपके करेक्ट द स्टेटमेंट्स वगैरह में, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है, कई बार मिलेगा लिखा साउंड इज अ ट्रांसवर्स वेव, दैट विल बी रॉन्ग. ट्रांसवर्स वेव इज लाइट. ठीक है, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सेकंड, रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम टू प्रोपोगेट. अब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, इट कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम, बट साउंड कैनॉट मूव इन वैक्यूम, इट रिक्वायर्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या हिसाब है, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड मोर इन लीस्ट इन गैसेस. दिस इज बिकॉज सॉलिड आर वेरी क्लोजली सिचुएटेड, तो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से बोली फटाफट 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 आपका ट्रांसमिट हो जाएगा. तो दिस इज longitudinal wave by compression और troughs ऐसे चलता है ना. तो solid, because they are jam packed, so this will lead to faster displacement या faster movement of particles, leading to faster transmission of vibration, leading to faster sounds. तो steel, जैसे आपका steel, it is one of the fastest conductor of sound. अब यही हमने देखा है, यही पढ़ा है हमने, देख लिया. नीड्स अ मटेरियल मीडियम, वी हैव सीन इट. हाउ साउंड ट्रेवल्स, वी हैव सीन बाय दिस एग्जांपल. व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट पुशेस एयर पार्टिकल्स थ्रू टुगेदर, क्रिएट्स अ रीजन ऑफ कंप्रेशन, दैट इज ये. अभी मान लीजिए यहाँ सारे इकट्ठे हो गए, कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज टर्फ.
region of compression, high pressure, high density. When it moves backward, it leaves behind a region of rarefaction. ये ठीक है. तो this series of compression and rarefaction travels as longitudinal waves. यहाँ मैं लिख देता हूँ. Light waves are transverse and no medium required, ताकि हमें याद रहे कि डिफरेंस है. अच्छा, characteristic of sound waves, this is important. One is frequency, that is number of vibrations per second is frequency. जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन पर सेकंड होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. नाउ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड. आप कहेंगे ना बड़ी पैनी आवाज़ होती है, क्यों? बिकॉज देर आर मोर वाइब्रेशंस पर सेकंड, सो दिस लीड्स टू मोर श्रिल वॉइस. जैसे आपकी फ्लूट होगी, फ्लूट की आवाज़ पैनी क्यों होती है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मोर. देन अदर इज एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. इट मींस जैसे ये आपकी साउंड वेव वैसे चलती है, ठीक है, ये चलती है. अब ये एक सेकंड मान लीजिए अगर इतना हुआ तो दिस इज ये दिस 1 सेकंड का इतना है, मान लीजिए 1 सेकंड ये, तो हाफ हाफ फ्रीक्वेंसी हाफ हुई, हाफ वेव ही जा पा रही है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी. मान लीजिए अगर 1 सेकंड में इतनी वेव हो रही है तो दिस इज मोर, दिस लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये डिस्टेंस, ये लेंथ, ये क्रेस्ट, और एक सेकंड, ये एम्पलीट्यूड है आपका. ये जितना है डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड. वेव हाइट, ये दिस इज एम्पलीट्यूड. व्हाट इट डज इज हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड. कि लार्जर, अब कैसे, अगर ये दिस हैज दिस ये दिस हैज हायर एम्पलीट्यूड. टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. अब मान लीजिए ये पूरी वाइब्रेशन हुई, ये यहाँ तक, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई. दिस इज वन वाइब्रेशन, दिस इज वन वाइब्रेशन. अब दिस टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन रेरिफेक्शन. अब दिस इज वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है. वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा कहते हैं, लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये वेवलेंथ. एंड वेलोसिटी इज स्पीड एंड डिस्टेंस, वो आप हम कर सकते हैं. जैसे अगर आपको दोबारा से मैं बनाऊं, ये आपकी अगर जैसे फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, मान लीजिए इतनी ये फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज वेवलेंथ. और 1 सेकंड में कितना गया, दैट इज टाइम पीरियड. स्पीड ऑफ साउंड depends on the medium, as we have seen, higher in solid, lesser in liquid and slowest in gases. This is the almost speed, जैसे एल्यूमिनियम में fastest रहती है. And reflection of sound, this is important. Sound also reflects. एक जगह लग के वापस आवाज इधर आ गई उधर आ गई, तो sound also reflects, and this reflection of sound leads to a phenomenon called echo. अब इको क्या है? जैसे रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस सरफेस. पहाड़ों में आप चिल्लाओगे तो जो अगली पहाड़ की माउंटेन रेंज को लग के वापस आ जाती है, दिस इज कॉल्ड इको. नाउ सम थिंग्स व्हिच नीड टू रिमेंबर अबाउट इको इज द डिस्टेंस फॉर इको टू हैपन शुड बी 17.2 मीटर्स. इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट 2 ये है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस 15 मीटर ही है तो इको कांट हैपन. For echo to happen, the distance should be at least 17.2 meters away, and this echo can be only heard if the time gap between the successive wave, जैसे उसको लग के आई वापस, should be more than 0.1 second. So ये इसका करके 17.2 मीटर पर सेकंड है. Then it is used in sonar. Sonar is sound navigation and ranging. आपने मूवी देखी होगी गाजी अटैक, या आपने मूवी कोई भी टॉम क्रूज की देखी हो मिशन इम्पॉसिबल, उसमें वी हैव सीन सम सबमरीन्स रोमिंग अराउंड एंड दे इंटरसेप्ट सिग्नल्स of another submarine by using this technology called sonar. So sonar, example bats. What bats do is they emit a particular sound form, that is ultrasound. अब वो जाएगी, टारगेट को हिट करके आएगी और वापस उनके पास आ जाएगी. सो दिस विल हेल्प देम टू डिटरमाइन व्हाट इज द डिस्टेंस
No, bats are blind. They only propagate and they only travel via this system. And last is auditorium designs. Now auditorium designs, आप कर्व्ड वॉल होंगी या द वॉल्स विल बी ऑफ आपकी गत्ते से बनी होंगी या दे हैव सम साउंड absorbing substance like curtains. So this is used to prevent reverberations, that is prolonged mixing of echoes. Multiple reflection of sound, megaphone and loud ये आपके loud hailers वगैरह, stethoscope, these are some things. अब range hearing, human can detect sound which are only from 20 hertz to 20,000 hertz. Anything below it and anything above it cannot be heard by humans. इससे नीचे होगी उन्हें कहते हैं infrasonic less than 20, and उससे ऊपर होगी ultrasonic. So below 20 hertz infrasonic, these can only be heard by elephants, whales, and 20,000 hertz के ऊपर रहता है ultrasonic, used by bats, dolphins, sonars, as we have seen it. Ultrasonic waves का यूज होता है कहाँ, इन चीज़ों में. You need to remember it. Main being this, breaking kidney stones, so ultrasonic is used. या आपके जैसे अगर आपने कभी वो कराया यार दांतों की स्केलिंग, so that is also used, that also uses this ultrasonic waves. Characteristic of sound, loudness, pitch, quality, ये हमने ऊपर देख लिए, तो आप सिंपल पढ़ लो. And nothing more to read. Now we'll be seeing some questions. अभी आपको पीडीएफ में आपको सेंड भी करूँगा. So this is a PDF, as I told you, has been extracted from previous year questions of various exams and which are specifically related to physics. अब जैसे you just message me if you have some legibility issues, but I'll suggest or I'll give you a way forward how to go about these PDF. अब ये PDF मैंने कैसे लिखी है, there is no structure to it. This is more of jottings, कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया क्वेश्चंस वैसे वैसे मैं लिखता गया. तो आपको एक ऐसे ही इसको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि पहले ये चैप्टर आ रहा है ये आ रहा है. मोर और लेस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होगा बट कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. थोड़ा सा अगर दिक्कत हो पहले आप गूगल करो, अगर नहीं समझ आता यू जस्ट मैसेज मी. आप ऐसे एक गोल करके भेजो सर ये क्या है, तो आई मेक श्योर आई रिले द राइट आंसर और द राइट थिंग बैक टू यू. अब जैसे एक एग्जांपल में कैसे दिखाऊं, कोई भी जैसे मान लीजिए ये. अब दिस इज अ क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसका क्वेश्चन आया था टेस्ला. तो टेस्ला इज एन एसआई यूनिट ऑफ विच मैग्नेटिक फ्लक्स. या जैसे ये रेंज नहीं काम करनी. अब क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो क्यूरी टेम्परेचर इज नथिंग बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस above a certain temperature and above they become paramagnetic. This temperature is Curie temperature. क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम पे, ठीक है. एज टेम्परेचर तो ये है. अब जैसे 1 एम्पेयर करंट मींस 6.25 into 10 raised to power minus 18 electrons enter at one end or leave other end of the conductor. अब एक करंट मूव्स in the direction of positive charge, that is from positive terminal of battery to negative terminal. ठीक है, जैसे ये करंट from positive terminal to negative terminal of battery, positive to negative terminal, while electrons move from negative terminal to positive terminal. तो ये हमें तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने लिखे हुए हैं, तो आप ये पढ़ो और कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्लीज आप मैसेज कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू. सो दिस इज व्हाट 23 पेजेस, और ये बिल्कुल एक छोटी सी डायरी ही थी तो ज़्यादा है नहीं इसमें, तो फटाफट यू कैन रीड इट. एंड अगर आपको यहाँ से समझना है यू कैन जस्ट गूगल इट द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर. सो मोर और लेस दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पढ़ो, it will be very helpful to you, and I hope today's class was a good eye opener for you. Since we didn't go in too much detail, we touched upon various issues and various concepts, and these concepts will rightly help you to solve the questions in exam and to achieve success. Thank you. Good night. Bye.